Welcome to the yet another session on computer networks. Today's topic is transmission media, and particularly we will be discussing fiber optics today. Yesterday we discussed in the last session we discussed the definition of the transmission media, then the different types of the transmission media, and we have already discussed the twisted pair cable and coaxial cable and their subtypes. Today we will discuss about fiber optics. So in today's lecture, we will discuss the fiber optics, its working principle, its structure, its types, its advantages and disadvantages. So let's start the discussion with the components of the fiber optics communication. Now in fiber optics communication, there are three main components of the fiber optics communication. The light source, the optical fiber that is used as a transmission media, and the detector. On the source side, what we will do, we will convert the data, we will convert the information into the form of signal, and in case of fiber optics, that signal will be light. Then that light will be transmitted by using the fiber optics cable, and on the receiver side we will be having the detector attached. When the light will fall on the detector, it will convert it into the 1, and when the light will not fall on the detector no on the given time, then it will consider it as 0. The fiber optics, this transmission media is basically made up of glass और plastic. प्लास्टिक बहुत ही कम केसेस में होता है, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको. थोड़ा सा ये हो जाता है कि कई कई बार आपको वो एक मिक्सचर सा मिलता है ग्लास और प्लास्टिक का लोअर क्वालिटी में, बट हायर क्वालिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लास. तो एक ग्लास की केबल होती है, उसमें से अब ग्लास में से आप वोल्टेज तो पास कर नहीं सकते ऑब्वियसली, तो ग्लास में से हम लाइट को पास करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को पहले लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ट्रांसमिशन मीडिया दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, उसको यूज करके हम लाइट को ट्रांसमिट कर देंगे, और ऑन अ रिसीवर साइड वी विल यूज अ डिटेक्टर टू convert the light into the information again, means to convert the light into the electrical form, that is 0 and 1. So light source that is used to send the data or information, means after converting the 0 and 1 into the light form. Transmission media is the fiber optics ultra thin cable of glass that used to carry the light from source to destination, and detector is used on the receiver side that generates the electrical pulses from the light received from the sender side. Now talking about the working principle of the optical fiber, you need to be a bit diligent to understand this concept, the working principle of the optical fiber. So let's assume that this is our transmission media, and the light is always travel in a straight line through a uniform substance. जब तक मीडियम जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब डेंसिटी है जो मीडियम की वो सेम रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो मान लीजिए दिस इज आवर सेंडर साइड and this is our receiver side. On sender side, we will be using a light source that will convert the electrical pulses into the light form, and at a certain angle it will transmit the light into the fiber optic cable. ठीक है जी. अब जिस एंगल पे ये लाइट जो हमारा सोर्स है सिग्नल ट्रांसमिट करता है to the perpendicular of the interface of the substance of the media. So suppose कीजिए this is the outer shield of our
फाइबर ऑप्टिक्स, तो बीच में है ये ग्लास। आप देख सकते हो कि अब ये ग्लास है, जो इसमें डॉट्स हैं, ये डॉट्स का पैटर्न सेम है थ्रू आउट द ग्लास, तो इट मींस अब ये ग्लास की डेंसिटी सेम है। तो हमने एक सर्टेन एंगल पे लाइट को ट्रांसमिट किया इनटू द ग्लास। ठीक हो गया जी। अब जैसे ही हम ग्लास में इसको ट्रांसमिट करेंगे, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी जब तक क्या होगा, जो आपका सब्सटेंस है जिसमें से आप लाइट पास कर रहे हो वो यूनिफॉर्म है। तो जैसे ही ये यहां तक पहुंचेगा, अब ये देखिए इसकी डेंसिटी चेंज हो गई। तो जैसे ही इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, अब क्या होगा, लाइट है जो अपना एंगल चेंज कर लेगी। गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर से देखिए। सो ऑन द सोर्स साइड यू हैव अ लाइट सोर्स, ये है आपका लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स ने क्या करा, एक सर्टन एंगल पे ट्रांसमिट किया लाइट को विद इन द फाइबर ऑप्टिक्स। नाउ फाइबर ऑप्टिक्स इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब वो ग्लास का जो की डेंसिटी है दैट इज सेम। तो आपने जिस एंगल पे इसको ट्रांसमिट किया लाइट को, सब्सटेंस के परपेंडिकुलर, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जिस एंगल पे आपने ट्रांसमिट किया लाइट को, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए, जैसे दिस इज द सिग्नल। अब इसका जो ये एंगल है टू द परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस टू द सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आपने लाइट को ट्रांसमिट किया, लाइट ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया जब तक आपका सब्सटेंस था वो यूनिफॉर्म था, उसकी डेंसिटी एक जैसी थी। लेकिन जैसे ही डेंसिटी चेंज हुई, अब इस पॉइंट पे आगे डेंसिटी चेंज हो गई, आप देख सकते हो अब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो जैसे ही डेंसिटी ज्यादा हुई, लाइट है जो वो अपना एंगल चेंज कर लेगी, अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मींस लाइट उस टाइम तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक जिस सोर्स से वो ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी सेम रहती है। जैसे ही डेंसिटी चेंज होती है, तो लाइट क्या करती है, अपना एंगल चेंज कर लेती है। जिस एंगल पे हमने लाइट को ट्रांसमिट किया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया? और ये लाइट जो अपना एंगल चेंज करती है फ्रॉम फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस विद नो with different density, this is called refraction, the change of angle due to the change of density of substance। तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी जब तक कि सोर्स की डेंसिटी क्या रहती है, यूनिफॉर्म। जैसे ही सोर्स की डेंसिटी चेंज होती है, लाइट अपना एंगल चेंज कर लेती है। अब इस एंगल चेंज के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये तो हो गई रिफ्रैक्शन, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स जो काम करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन कब होगी, जब वो अपना पाथ वापस वही ले लेगी जिस पाथ से उसको ट्रांसमिट किया गया है। तो अब ये होगा कैसे, अब दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, जो लाइट है वो, देखिए, लाइट अपना एंगल चेंज करती जाएगी एंड इट विल कम क्लोजर टू द इंटरफेस। तो आपने थोड़ा सा एंगल और इंक्रीज कर दिया, लाइट ने थोड़ा सा एंगल और चेंज कर दिया, और वो और क्लोज आ गई विद द इंटरफेस। अब आपने एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और अब ऐसे ही जो आपकी सिग्नल है वो पैरेलल हो गया टू द इंटरफेस। अब इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इतना इंक्रीज कर देते हो कि लाइट
रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाती है टू द इंटरफेस, देन वी कॉल इट एज क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे आप सोर्स से लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हो। क्रिटिकल एंगल कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, वो क्रिटिकल एंगल कब बन जाएगा, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट पैरेलल हो जाएगी टू द इंटरफेस। अब इसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद आप इसका एंगल और इंक्रीज करोगे तो ये वापस लाइट टकरा के वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइन ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करते रहे, लाइन ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते एंगल चेंज होने के बाद पैरेलल हो गया इंटरफेस को, उस मोमेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल आने के बाद इफ यू विल फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the the transmitted light will be reflected from the outer layer. This concept is called reflection. तो अब यही होगा, देखिए ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो अब लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे ही होगा, पहले ये यहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस, यहां से वापस, तो इस तरह से ये ट्रेवल करेगी फ्रॉम सोर्स टू destination. This concept is called total internal reflection. This is the working principle of the fiber optics या ऑप्टिकल फाइबर। तो अब ऑप्टिकल फाइबर में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम एक ग्लास केबल लेंगे, उस ग्लास केबल के आउटसाइड एक हम ज्यादा डेंसिटी वाली प्लास्टिक ले लेंगे, लाइट को ट्रांसमिट करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर से जैसे ही, क्योंकि ग्लास का जो अब डेंसिटी है वो सेम है, तो ये ग्लास से बाहर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही ये बाहर जाएगी वहां पे डेंसिटी अलग है, तो ये टकरा के वापस आ जाएगी। फिर ग्लास के अंदर वो फिर स्टेट चलेगी, फिर प्लास्टिक जैकेट से टकराएगी, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो इस तरह से लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी के बेस पे आपका सिग्नल या लाइट ट्रांसमिट होती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन in fiber optics. This is the working principle of the fiber optics. Now talking about the construction of the optical fiber, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल कोर में आपके पास ग्लास कोर होती है, ग्लास के बाद होती है आपके पास ग्लास की क्लैडिंग, और उसके बाद होती है प्लास्टिक जैकेट। अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होती है और ये यूनिफॉर्म रहती है। अब इससे भी ज्यादा इसकी प्लास्टिक की डेंसिटी होती है और ये इसमें यूनिफॉर्म होती है। तो आप सिग्नल करते हो पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो जैसे ही ये प्लास्टिक क्लैडिंग से टकराता है ये वापस आ जाता है। वापस कब आता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल। So this is the structure of the fiber optics. Now talking about the types of fiber optics, or fiber optics can be categorized based upon the propagation modes also. Now based upon the propagation mode, fiber optics can be of two types: single mode and multi mode। सिंगल मोड जिसमें एक ही लाइट सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो आप, नाम से ही क्लियर है। मल्टी मोड, इसमें मल्टीपल सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर सकते हो एट डिफरेंट एंगल्स। इसमें सिर्फ एक सिग्नल होगा, एक लाइट सिग्नल होगा, इसमें हो सकते हैं मल्टीपल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल मोड केबल फाइबर ऑप्टिक्स एंड मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स। मल्टी मोड फर्दर डिवाइड होती है स्टेप इंडेक्स
एंड ग्रेडेड इंडेक्स। तो चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि ये सिंगल मोड और इसमें सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, मल्टी मोड इसमें सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, और उसकी सब कैटेगरीज वो कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। नाउ एज आई टोल्ड यू, in single mode fiber optics you can transmit only one light signal at a time। अब जो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स होती है वो बहुत बहुत थिन होती है। उसका साइज जो होता है, उसका डायमीटर जो होता है, दैट इज 8 to 10 माइक्रोन्स। 8 to 10 माइक्रोन्स ओनली। इतनी इतनी ये आई मीन थिन होती है ये फाइबर ऑप्टिक्स, सिंगल मोड जो होती है। तो ये इतनी थिन होती है, ये होती है, इसका साइज डायमीटर होता है 8 to 10 माइक्रोन्स। और इसमें जो सिग्नल है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप एक ही सिग्नल सेंड कर सकते हो और वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। अब सिंगल मोड की क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, बहुत ही बड़ी स्पेसिफिकेशन जो है, इट हैज लोअर डेंसिटी दैट क्रिएट्स अ क्रिटिकल एंगल क्लोज इनफ टू 90 डिग्री। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन में करना चाहते हो तो क्रिटिकल एंगल को 90 डिग्री के क्लोज रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो सिग्नल है इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सिंगल मोड में जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। और सिंगल मोड केबल जो होती है उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, 8 to 10 माइक्रोन्स। इसमें सिर्फ आप एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हो और इसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है इन अ स्ट्रेट line। So these are the three specifications of the single mode. The diameter 8 to 10 microns, only one signal, and that travels in the straight line. सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इनका कवरेज एरिया और ट्रांसमिशन स्पीड भी ज्यादा होती है। सिंगल मोड में आप 50 Gbps तक ट्रांसमिट कर सकते हो अप टू 100 किलोमीटर्स विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन। 50 Gbps फॉर 100 किलोमीटर्स। क्लियर हो गया जी? द नेक्स्ट इज मल्टी मोड। मल्टी मोड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। तो स्टेप इंडेक्स जो मल्टी मोड होता है इसमें एक से ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, इसलिए ये डिफरेंट है फ्रॉम सिंगल मोड। अब इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इसकी डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसमें आप मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, बट हर सिग्नल का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी सेपरेट, दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे देख सकते हो इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड केबल वी आर सेंडिंग द मल्टीपल सिग्नल। अब ये देखिए 1 2 और 3, हम 3 सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और तीनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज डिफरेंट। और डेस्टिनेशन पे भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंगली डिटेक्टर्स होंगे और मल्टीपल डिटेक्टर्स आप यूज करोगे आप, और उन डिटेक्टर से आप सिग्नल को अलग अलग कर लोगे। मल्टीपल सिग्नल्स को आप you will be distinguished to signal from one to another, क्योंकि वो सभी अलग एंगल पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसीलिए अलग एंगल पे ही रिसीव होंगे। दिस टाइप ऑफ मल्टी मोड केबल इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास आती है ग्रेडेड इंडेक्स, और ग्रेडेड इंडेक्स में आप देख सकते हो कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में एक क्लियर कट सा डिफरेंस है। तो इसका जो ट्रांसमिशन एंगल है वो हमेशा कर्व की फॉर्म में होता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो यूनिफॉर्म ना होने के कारण ये जो सिग्नल ट्रेवल करता है इट ट्रेवल्स इन द वेव फॉर्म एज कंपेयर टू द जिगजैग फॉर्म इन द स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या हो रहा था
कि आपका जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा था वो जिगजैग फॉर्म में कर रहा था, जिगजैग पाथ ले रहा था, लाइक दिस। और ग्रेडेड इंडेक्स में ये वेव फॉर्म में होगा, like this. So this is the major difference between step index and graded index multimode fiber optics. Now talking about the light source, we can use two types of light sources: light emitting diode LED and laser. तो अब इनमें से कौन सा यूज करो वो डिपेंड करता है अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। एलईडी का डेटा रेट कम होता है, लेजर का ज्यादा होता है। जो लेजर है इट कैन बी यूज इन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, बट एलईडी को मल्टी मोड में ही यूज कर सकते हो। लेजर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा एरिया कवर करती है, और एलईडी की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, लेजर की कंपेरेटिवली कम होती है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी एलईडी की बहुत ही कम होती है, लेकिन लेजर की उससे ज्यादा होती है। और कॉस्ट, एलईडी की कॉस्ट बहुत ही कम है, लेजर की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इट मींस आप कौन सा सोर्स यूज करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड द टाइप ऑफ द केबल यू आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग सिंगल मोड केबल तो ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग लेजर, क्योंकि सिंगल मोड में लेजर ही यूज होगी। लेजर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी रीच ज्यादा होती है, वो ज्यादा डेटा को कैरी कर सकती है। लेकिन मल्टी मोड में आप एलईडी भी यूज कर सकते हो, उसका प्राइस कम है, उसकी लाइफ ज्यादा है, उसकी जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है दैट इज आल्सो लेसर एज कंपेयर टू द लेजर सोर्स। तो दो तरह का ही लाइट सोर्स हो सकता है। तो उसके बाद talking about the advantages and disadvantages of the fiber optics, ऑप्टिकल फाइबर की जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि इंटरफेरेंस तो तभी होगी अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करोगे। इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, ये थिन होती है, लाइट होती है, वेट इनका कम होता है, और मल्टीपल आप कंबाइन करके इनको एक फाइबर ऑप्टिक्स का बंडल बना सकते हो। तो ग्लास जो है वो कॉपर से ज्यादा कोरेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल है, सो ये ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन पे भी काम कर सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में अटेनुएशन बहुत ही कम होती है। अटेनुएशन इज द लॉस ऑफ द सिग्नल ड्यू टू द डिस्टेंस। ऑप्टिकल फाइबर में ये बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। इसमें सिग्नल लीकेज की रेडिएशन के चांसेस नहीं रहते। इसमें आप टैप नहीं लगा सकते, जैसे आप फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल पे टैप लगा के उसमें से डेटा को आप चुरा सकते हो। इसमें आप फिजिकल टैप नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी बात है, जो फोटोन्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में, लाइट फोटोन्स, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, और लॉन्ग रन में ऑप्टिकल फाइबर की कॉस्ट कम पड़ती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेपर केबल एंड कोएक्सियल। हालांकि इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको सस्ती पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि द फाइबर ऑप्टिक इज मेड अप ऑफ ग्लास, दैट्स व्हाई इट्स फ्रेजाइल एंड कैन इजीली ब्रोकन। और ये ग्लास की बनी होने के कारण ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, दीज आर यूनिडायरेक्शनल। तो अगर आपने बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन देनी है तो आपको दो केबल्स लगानी पड़ेंगी, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग, क्योंकि एक ग्लास में केबल में आप यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ही कर सकते हो। और इसकी अगली डिसएडवांटेज है, यू नीड स्किल्ड पीपल टू एडमिनिस्ट्रेट, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन द फाइबर ऑप्टिक्स। ये आपके लिए आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन ही चाहिए टू इंस्टॉल, मेंटेन एंड एडमिनिस्ट्रेट द फाइबर ऑप्टिक्स केबल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो अब एक दो चीजें हैं, मैं जल्दी से आपके साथ रिफ्रेश कर लेता हूं। पहली चीज, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में तीन मेन कंपोनेंट्स रहते हैं: लाइट सोर्स,
जो आपके सिग्नल को, आपके डेटा को कन्वर्ट करेगी लाइट सिग्नल में। ठीक है जी। तो लाइट सोर्स विल कन्वर्ट द डेटा इनटू या इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनटू लाइट। और ये जो आपका लाइट सोर्स है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आप एलईडी भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज द लेजर ऑल्सो। ट्रांसमिशन मीडिया, द फाइबर ऑप्टिक्स, ये भी दो तरह की होती है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। मोड में आप एक ही सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो। इसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन्स होता है। ये ज्यादा डेटा को कैरी कर सकती है और ज्यादा दूर तक, मतलब 50 जीबीपीएस डेटा को कैरी कर सकती है अप टू 100 किलोमीटर्स। इसका प्राइस भी ज्यादा होता है और इसमें आप लेजर यूज करोगे एज अ लाइट सोर्स। मल्टी मोड में आप मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हो। दो तरह की होती है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करता है या स्ट्रेट लाइन में करता है। ग्रेडेड इंडेक्स में स्ट्रेट लाइन में करता है या वेव की फॉर्म में करता है। And the detector is installed on the receiver and it converts the light into electrical pulses. अब these are the major topic of discussion today's lecture. तो ये था मेन हमारा आज का सारा लेक्चर। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर uses the principle of total internal reflection. रिफ्लेक्शन कब होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लेसर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तब तक रिफ्रैक्शन होती है। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है, फिर होती है रिफ्लेक्शन। दोनों वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने टाइप्स देखे। सिंगल मोड में ये देखिए, सिंगल मोड में ऑब्वियसली दूर तक ट्रेवल करेगा। जब तक सिंगल स्ट्रेट लाइन में सिग्नल ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म सब्सटेंस से, तो वो ज्यादा दूर तक ही करेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। लेकिन जब ये जिगजैग पाथ में को फॉलो करता है तो टकराने से थोड़ा सा उसका सिग्नल एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो रीचेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए सिंगल मोड का जो कवरेज एरिया है, कवरेज डिस्टेंस है, वो ज्यादा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, देन द लाइट सोर्स, एलईडी, लेजर, दोनों को कंपेयर किया। देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स. So that's all about today's lecture. Thank you very much for joining.